So in this video, we are going to understand the implementation of a static routing using Cisco Packet Tracer. But our objective is to create a network somewhat like this. This is my network 1 and this is my network 2. And I want to establish a communication between this network 1 and network 2 using a concept called as static routing. So in static routing, you have to manually configure your networks. So let's understand the implementation of this network diagram with the help of a Cisco Packet Tracer. So first of all, here I am going to make a use of a router, and the router which I am going to make a use is 2x20XM. This 2x20XM is a multi-purpose router through which you can connect multiple serial cables. अगर आपको serial port के connections देने हो, so you can make a use of 2x20XM router. So I am going to make a use of 3 routers. This is going to be my router 0, and let me just take 2 more routers, router 1 and router 2. The first step is I am going to add a serial port connection in all these 3 routers. In तीनों routers में हम एक serial connection add करेंगे. So in order to do that, you have to click on your router 0. In a physical device view, first of all you have to turn off your router. आपको अपने router की power कर देनी है off. And here you can make a use of this WIC-IT, which is a single port serial connection. So I am going to make a use of this WIC-IT serial connection, and I am going to power on my router. Same step you have to do for your router 1 and for router 2. So let me just do that. तो सबसे पहले मैं इसकी कर दूंगा power turned off, and I am going to make a use of this WIC-IT. एक लेट से मैंने यहाँ पर लगा दिया connection port. Turn the power on and close this. Same मैं router 2 के लिए कर लेता हूँ. इसकी मैंने power कर दी off let's say, and I am going to make a use of the serial connection. Power कर दी मैंने इसकी on. Now in order to connect these 3 routers, I am going to make a use of a serial cable. Serial cable का मैं use करूँगा, and the serial cable which I am going to use is serial DCE cable. So let me just select the serial DCE cable. You have to select this serial port 0/0. कि let's say अभी मेरे को 0 वाले port serial वाले port पे connect करनी है cable. So let me just make a use of serial 0/0. Okay. Now the next step is to इस router 1 को अभी मैं फिलहाल एक बार के लिए कर देता हूँ turned off. So actually मेरे को करना क्या है, इस router के लिए ये वाला serial port हो गया, और मेरे को इस वाले router के लिए भी एक serial port चाहिए. So I am going to add one more serial port into this router. So I am going to make a use of this WIC-1T. तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया. Turn your power router on, और इसको आप कर दो close. Now here I am going to make a use of my serial cable. Let's say, and this time I am going to make a use of serial port 0/1. Okay. So let's say serial 0/0. Okay. Now within this network I need 3 PCs. जो मैं PCs लूँगा वो generic type के होंगे मेरे. So I am going to select this end devices, and I am going to make a use of a generic PC. एक PC मैंने यहाँ पर place कर दिया, एक PC मैंने इस router के लिए place कर दिया, और एक यहाँ पर place कर दिया. Now in order to connect these PCs with router, I am going to make a use of a crossover cable. तो proper crossover cable मैं use कर रहा हूँ. So let me just select fast Ethernet 0, fast Ethernet 0/0. Same मैं PC 1 के लिए कर लेता हूँ, और सेम मैं कर लेता हूँ अपने PC 2 के लिए. So हमारा नेटवर्क एक तैयार हो गया. Now what exactly I want is I want to connect this network A with this network B with the help of this router. Okay. Now I am going to make a use of certain IP addresses. मैं कुछ IP address में specify कर देता हूँ. So I am going to make a use of this note. So let's say इस router 0 के लिए मैं IP address ले लेता हूँ 192.168.0.1. This is the IP address for my router 0. In a same scenario, मैं एक router 2 के लिए भी IP address ले लेता हूँ 192.168.1.2. Now this router is going to listen this router 0 and router 2 as well. So यहाँ पर मैं दोनों के IP address specify कर देता हूँ. तो let's say यहाँ पर मैंने अपना स्पेसिफाई कर दिया फॉर माई राउटर 0
192.168.0.2. और सेम सिनेरियो में मैं इसी वाले राउटर पे इस वाले का भी आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ, so that we can establish a communication between them. So 192.168, and this time I am going to make a use of 1.1. So 1.1 will going to listen this router, and this 0.2 will going to listen this router. Okay. So इसी तरीके से मैं इन फास्ट इथरनेट का भी आईपी एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ. इन for this fast Ethernet, I am going to make a use of an address 192.168.2.1. इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ फास्ट इथरनेट के लिए 192.168.3.1. Okay. And for this I am going to make a use of 192.168.4.1. तो यहाँ पर मैंने फास्ट इथरनेट के आईपी एड्रेसेस भी डिफाइन कर दिए हैं. अब लेट्स से एक और मैं इसमें सिग्निफिकेंस करता हूँ. आई एम गोइंग टू गिव दिस राउटर 0 एज अ होस्ट नेम ऑफ R1. और इस वाले को मैं देता हूँ लेट्स से R2 मीन्स राउटर 2, और इस वाले को मैं देता हूँ राउटर 3. सो नाउ यू कैन सी दैट अवर नेटवर्क डायग्राम हैज बीन क्रिएटेड. मतलब नेटवर्क डायग्राम हमने बना दिया. Now we are going to move towards the implementation part. तो स्टैटिक राउटिंग में आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो आप क्या करोगे मैन्युअली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस राउटर 0, and within this router 0 you have to select your CLI, means we are going to work in a command line prompt. Okay. So it is asking me continue with configuration dialog, and I am going to specify no. So let's say in order to press return you have to press enter. So अभी हम किस पे हैं, privilege वाले मोड पे हैं. So we have to switch into my root mode. In order to switch into root mode you have to make a use of a keyword called as enable. Enable command आप इसमें execute करोगे and you will be switched to root mode. After this enable, what exactly we need to do is we need to configure our terminal. So I am going to make a use of this configure terminal. So now you can see that we have been switched into our configuration mode. So here the first step is to I am going to change the name of my router. So let me just make a use of this hostname command, और मैंने इसका router का नाम दे दिया R1. So as soon as you press enter you can see that your router name has been changed to R1. Now the next step is to I have to specify which interfaces I am going to make a use. So the first interface I am going to make a use is interface serial (0/0). Okay, तो सबसे पहले मैं इसका IP एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ. As soon as you press enter, so you will switch into configuration-if interface mode. So यहाँ पर जो मेरे को IP एड्रेस चाहिए वो चाहिए 192. So let me just make a use of this IP address as well. 192.168.0.1. This is the serial port address of my serial cable. Now you have to specify its subnet mask as well. So let's say इसका subnet mask मैंने specify कर दिया 255.255.255.0. Okay. Now you have to press enter. So आपने अपनी सीरियल केबल 0/0 पे आपका IP एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया कि you are going to make a use of this IP address on your serial port 0. Now the next step is to I am going to specify a clock rate. So let me just make a use of clock rate, and I am going to make a use of 64,000 clock rate. And after that I am going to make a use of a command called as no shut down. So you can see that my state has been down. अभी आपको वो भी जब मैं इसके इंटरफेस पे जब मैं IP एड्रेस सेट करूंगा और जब इंटरफेस वाले फास्ट इथरनेट को मैं करूंगा नो शट डाउन, तब ये मेरी स्टेट क्या हो जाएगी अप. अभी फिलहाल ये डाउन रहेगी. नाउ आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई दिस इंटरफेस केबल. अब इस वाली केबल का भी मैं मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ कि क्या इसका IP एड्रेस रहेगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कमांड कॉल्ड एज exit.
So now I'm going to make a use of interface, and here I'm going to specify fast Ethernet 0/0. अब मैं अपनी फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस में स्पेसिफाई कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ IP एड्रेस. So you can make a use of short form as well, IP-ADD. And here you have to specify the IP address. So 192.168.2.1 along with its subnet mask 255.255.255.0. Okay. Now here you have to specify clock rate as well. So let's say I'm going to specify clock rate, and the clock rate which I am going to make a use of is 64,000. ओके मेरे को सॉरी इसमें भी क्लॉक रेट नहीं लगानी, इसमें जस्ट आई हैव टू मेक अ यूज ऑफ नो शट डाउन. तो क्लॉक रेट मेरे को सिर्फ सीरियल वाले पोर्ट को देना है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ नो शट डाउन एंड यू हैव टू प्रेस एंटर. सो नाउ यू कैन सी दैट द कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. ग्रीन हो गया मींस दे आर एक्टिव नाउ. सो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ एग्जिट. Now the next step is you have to click on this router 1, and in this router 1 switch to this CLI tab. Press or let's say write no here and press enter in order to switch into execution mode. So let's say here I am going to make a use of command called as enable in order to switch into a root mode. Now here I am going to first of all going to make a use of a configure terminal. So CLI में ना short form भी use कर सकते हो. So let's say मैंने यहाँ पे लिखा CONFTER, short form for your configure terminal, and press enter. So you will be switched into your configuration mode. अब इसमें आपके पास दो सीरियल पोर्ट हैं. एक पे एड्रेस है 192.168.0.2 और एक पे एड्रेस है 192.168.1.1. सो मेरे को दोनों के ही अब आईपी एड्रेसेस में स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. पहला स्टेप मैं ये करता हूँ, आई एम गोइंग टू चेंज माय होस्ट नेम. सो लेट्स से इन ऑर्डर टू चेंज योर होस्ट नेम जस्ट सिंपली टाइप होस्ट नेम एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर होस्ट. सो यू कैन सी दैट द होस्ट नेम ऑफ माय राउटर हैज बीन चेंज्ड इनटू R2. अब इसके बाद है आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंटरफेस. सो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ INT फॉर शॉर्ट फॉर्म सीरियल केबल 0. तो आपने जब देखा होगा इसमें दो सीरियल केबल जा रहे थे, एक 0 पोर्ट पे और एक 1 वाले पोर्ट पे. तो सबसे पहले मैं स्पेसिफाई किसका कर रहा हूँ, 0 पोर्ट वाले का. लेट्स से सीरियल पोर्ट 0 वाले की मैं कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर रहा हूँ. So you can see that I am into my configuration interface mode. अब इस वाले सीरियल पोर्ट का आपको आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करना है. और लेट्स से आईपी एड्रेस जो मैंने इसके लिए यूज किया है वो किया है मैंने 192.168.0.2. तो जो भी आपने यहाँ पर आईपी एड्रेस दिया वही देना. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस दिया 192.168.0.2. ओके, along with its subnet mask 255.255.255.0. तो इसका आईपी एड्रेस मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस आईपी एड्रेस. नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कमांड नो शट डाउन. तो यहाँ पर लेट्स से सिंपली लिख देता हूँ नो शट डाउन. अभी इसका लेट्स से मैं क्लॉक रेट सेट नहीं कर रहा हूँ, एक बार इसको मैं बाद में करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ना ऑलरेडी कर रखा है तो वो डीसी वाला एरर ना आ जाए. तो लेट्स से अभी मैं इसका क्लॉक रेट सेट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसका सेट कर दिया ऑलरेडी राउटर 0 का. सो आई एम गोइंग टू जस्ट मेक अ यूज ऑफ अ नो शट डाउन. इसी तरीके से मैं देता हूँ अपने सीरियल पोर्ट 1 के लिए. तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ एग्जिट कमांड. In this configuration mode, what exactly I am going to do is I am going to make a use of interface, or this time I am going to make a use of a serial 0/1. Serial port 1 पे मैं अब इसका कनेक्शन देता हूँ और उसके लिए just a minute, interface clicks. Okay. और इसका लेट से मैं एक बार IP एड्रेस सेट कर देता हूँ. IP एड्रेस 192.168.1.1.
तो इसके लिए जो मैंने आईपी एड्रेस ले रखा है वो ले रखा है 1.1 along with its subnet mask 255.255.255.0 और यहाँ पर भी आप इसके बाद एक कमांड दे देना नो शटडाउन की, so that our state has been changed to up. अब इसके बाद जो मेरे को देनी है वो फास्ट इथरनेट की देनी है, क्योंकि इसके साथ भी मैंने एक पीसी अटैच किया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एग्जिट कमांड एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट. और जो इसका फास्ट इथरनेट मेरे को यूज करना है वो मेरा 0 पोर्ट ही है. तो लेट्स से 0/0. इसका एक मैं आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करता हूँ, आईपी एड्रेस, और इसके लिए जो मैंने आईपी एड्रेस लिया हुआ वो लिया हुआ 3.1. सो 192.168.3.1 along with its subnet mask 255.255.255.0. After that you have to make a use of a command no shutdown. से मैंने यहाँ पे ले लिया नो शटडाउन. सो लेट्स से आप इस वाले राउटर 0 के लिए तो अभी क्लॉक रेट सेट कर चुके हो, बट अभी आपने ना इस वाले के लिए क्लॉक रेट सेट नहीं करी है. तो इसके लिए क्लॉक रेट सेट करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चेंज इट्स इंटरफेस. और इसके लिए जो इंटरफेस मैंने यूज किया वो किया हुआ सीरियल पोर्ट 1 का. तो ये वाला स्टेप एक बार आप ध्यान से देखना. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कमांड एग्जिट, और इसके बाद मैं अपने इंटरफेस पे आ जाता हूँ वापस, इंटरफेस सीरियल पोर्ट 1 पे. एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लॉक रेट. तो यहाँ पे लेट्स से मैं स्पेसिफाई करता हूँ उसका क्लॉक रेट 64,000. अब यहाँ पर आप एंटर प्रेस करके देखो कोई वो DTE वाला एरर तो नहीं आ रहा. सो लेट्स से मेरे राउटर 2 की भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर माय राउटर 2. ओके, तो लेट्स से यू हैव टू क्लिक ऑन दिस CLI टैब and press right here no and press enter in order to switch into execution mode. So first of all I am going to make a use of enable. So now you can see that I am switched into my root mode. तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ अपने टर्मिनल को. कॉन्फ़िगर TER. So first of all I am going to change its host name. So let's say इसका host name मैंने दे दिया R3. Here I have to specify कि which interface I am going to make a use. तो यहाँ पर जो मैं इंटरफेस यूज कर रहा हूँ मैं कौन सा कर रहा हूँ, सीरियल पोर्ट. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंटरफेस सीरियल /0. इसका आईपी एड्रेस मैं स्पेसिफाई करता हूँ, आईपी एड्रेस, और लेट्स से इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2. दिस इज द आईपी एड्रेस फॉर माय सीरियल पोर्ट 0 along with its subnet mask 255.255.255.0. Okay. Press enter. And after that you have to make a use of a command no shutdown. अब इस वाले नेटवर्क के साथ आपके फास्ट इथरनेट केबल भी अटैच है. सो आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दिस. सॉरी, so let me just switch back to my configure terminal. मैंने 2 टाइम एक बार एग्जिट कर दिया. So now here I am going to make a use of interface fast Ethernet. 0/0 here. 0/0. अब इसका IP एड्रेस आप वो स्पेसिफाई कर दो ना जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है. तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ 192.168.4.1. So IP address 192.168.4.1 along with its subnet mask 255.255.255.0. यहाँ पर फिर आप एक कमांड टाइप कर देना नो शटडाउन.
अभी नहीं करना अपडेट वगैरह, अभी समझ इतना ही करना है आपको, नो शट डाउन. So now close this. So now you can see that our network is activated. कहीं पे किसका रेड मार्क आ रहा है, तो मतलब एक्टिवेट नहीं है, तो मीन्स आवर राउटर, मतलब लेट्स से आवर दिस नेटवर्क इज बीन एक्टिवेटेड. So now the next step is to we have to configure these PCs. इनको हमें आपको IP एड्रेस देना है. So click on this desktop tag and you have to select this IP configuration. So let's say इस PC के लिए मैं IP एड्रेस देता हूँ 192.168.2.2. ओके, और इसका डिफॉल्ट गेटवे में के लिए मैं ये वाला IP एड्रेस देता हूँ 2.1 वाला. फॉर डिफॉल्ट गेटवे आई एम गोइंग टू गिव दिस IP एड्रेस. So 192 डॉट, ताकि इस पीसी को पता लग जाए कि थ्रू विच फास्ट इथरनेट केबल ही इज कनेक्टेड. सो इसलिए डिफॉल्ट गेटवे में कौन सा दे रहा हूँ 192.168.2.1. नहीं 2.1, एक बार इस वाले का IP एड्रेस देना. इस वाले फास्ट इथरनेट पे मेरे को बताना है कि आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस पीसी. ये आपकी केबल का IP एड्रेस है और इस वाले पीसी IP का एड्रेस मैंने 2.2 लिया है. In a same scenario, I am going to give this PC1 as an IP address. तो डेस्कटॉप पे आप आओ, IP कॉन्फ़िगरेशन पे एक बार क्लिक करो. So let me just check, इसका मैंने जैसे 3.1 दिया हुआ है. So I am going to make a use of IP address 192.168.3. Let's say इसका मैंने 1 दिया, so I am going to make a use of 3.2 so that they will be in the same network. और इसके बाद मैं इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे देता हूँ 192.168.3.1. इन सेम सिनेरियो मैं इस वाले को भी एक IP एड्रेस देता हूँ PC2 को. क्लिक ऑन डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168 just let me just 4.2 192.168.4.1. तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी अपने तीनों पीसीज की. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन योर राउटर 0 एंड यू हैव टू स्विच टू योर CLI टैब. सो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड. सो प्रेस एंटर. तो लेट्स से मैं अभी किस में आ गया, एग्जीक्यूशन मोड में आ गया. हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कमांड इनेबल. सो नाउ आई विल स्विच इनटू माय रूट मोड. हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल. In order to make a use of a routing table, I have a command over here, and that command called is IP root. It is going to specify the root of your IP addresses. So the first IP address we have is 192.168.0. Let's say 1.0. Okay. इसके बाद you have to specify subnet mask 255.255.255.0. And after that you have to specify कि on which port they are. They are actually on port serial port 0. इस वाले सीरियल पोर्ट पे ये है. यहाँ पर आपने 1.1 दिया है. So let's say बता रहा हूँ कि मेरे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, मतलब मेरे को जो ध्यान देने वाली बात है वो इस वाले पे है, 2 वाले पे. सो 2 इंडिकेट करता है वी आर ऑन द सेम नेटवर्क. ओके, तो मैं यहाँ पर अभी 1.0 दे रहा हूँ, फिर 2.0 दूंगा, 3.0 दूंगा, 4.0 दूंगा. सो नाउ यू हैव टू प्रेस एंटर. इसी तरीके से मैं देता हूँ अपने 2.0 के लिए. इसी तरीके से मैं देता हूँ अपने 3.0 के लिए. तो जितने भी IP एड्रेसेस आपने लिए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. और एक जो मैंने लास्ट लिया हो 4.0 लिया हुआ मेरे राउटर 4 के लिए. प्रेस एंटर. तो ये आपने राउटिंग टेबल बनाई आपने. इसमें कोई कंफ्यूजन इस वाले में? Now the next step is to you have to click on this router 1. अब इस router 1 में आपको किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन देनी है. So first of all just type enable here and then you have to type configure terminal. CONFTER. अब इसमें लेट्स से जो मैं IP रूट की टेबल बनाऊंगा IP ROUTE
सबसे पहला आईपी एड्रेस मैं स्पेसिफाई करूंगा इसमें 192.168.0 लेट्स से सॉरी 1.0 जिसमें चेक ओके 1.0 नहीं यहाँ पर आएगा 2.0 क्योंकि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तो लेट मी जस्ट स्पेसिफाई 2.0 तो यहाँ पे मैंने इस वाले सिस्टम की इंफॉर्मेशन बता दी अपने राउटर 1 को अलॉन्ग विद इट सबनेट मास्क 255.255.255.0 अब ये वाला जो आपका आईपी एड्रेस है 2.1 इसको एक बार ध्यान से देखना इट इज कनेक्टेड ऑन योर सीरियल पोर्ट 0 तो लेट मी जस्ट मेक अ यूजर सीरियल 0/0 प्रेस एंटर अब इसके बाद इसी वाले राउटर के लिए मैं ये वाला आईपी एड्रेस भी स्पेसिफाई करता हूँ दैट मेरे पास ये वाला आईपी एड्रेस भी है सो यही कमांड मैंने यूज करी बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 4.0 और इसका जो सीरियल पोर्ट है वो कौन सा है सीरियल पोर्ट 1 वो सीरियल पोर्ट 0 पे कनेक्ट है और ये वाला आईपी एड्रेस सीरियल पोर्ट 1 पे कनेक्ट है ओके नाउ सिंपल प्रेस एंटर तो इसकी भी आपने आईपी राउटिंग टेबल बना दी कि ये किस किस को अपना पैकेट राउट कर सकता है तो ये वाला राउटर अब इस वाले को भी कर सकता है और इस 4.1 वाले को भी कर सकता है वो वाला तो कर ही लेगा वो तो उसके साथ ही अटैच है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं अब इसी तरीके से यू हैव टू क्लिक ऑन दिस राउटर टू स्विच टू योर CLI टैब प्रेस एग्जिट ओके सो नाउ आई एम इनटू माय रूट मोड so I am going to make a user let me just now here I am going to specify its IP route so 192.168.2.0 तो 2.0 वाले किस वाले का है फर्स्ट वाले PC 0 वाले का एड्रेस है along with its subnet mask 255.255.255.0 ओके सीरियल पोर्ट मैंने स्पेसिफाई नहीं किया अच्छा इसके लिए जो सीरियल पोर्ट है वो मेरा ये रहेगा सीरियल पोर्ट 0 कर दो इसको प्रेस एंटर एक और जो आईपी एड्रेस इसके साथ एसोसिएटेड है वो कहाँ से स्टार्ट है आपके 1 से स्टार्ट हो रहा है 1.1 1.2 दिया जो भी है तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस एज वेल सो हियर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इट फ्रॉम 1.0 सो लेट्स से यहाँ पे मैंने 1.0 का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया नाउ क्लिक ऑन क्लोज so now I am going to click on this PC0 and with this PC0 I am going to communicate with this PC2 so let me just make a use of a command prompt and I am going to make a use of ping 192.168.4.2 so let's say अगर आपको याद हो तो मैंने इसका IP एड्रेस दिया था 4.2 let me just press enter तो फर्स्ट टाइम पे एक बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा सो यू कैन सी दैट इट इज एबल टू कम्युनिकेट विद योर पीसी लास्ट मतलब ये वाला पीसी दूसरे वाले पीसी से एबल है कम्युनिकेट करने के लिए इसी तरीके से मैं एक बार ये देख लेता हूँ जो मैंने 3.2 का दिया था तो 3.2 से भी ये कम्युनिकेट कर पा रहा है तो मतलब आपको 3.2 की ना मतलब कोई नीड नहीं थी देने की So you can see that this PC is able to communicate with this PC1 and PC2. Same scenario में मैं let's say इस PC1 के साथ इसको एक बार communicate करके देखता हूँ जिसका मैंने IP एड्रेस दिया था 2.2. So ping 192.168.2.2. So ये इससे भी communicate कर पा रहा है. Okay. So finally मेरा एक बार ये रह गया बस PC2 इसको मैं बस चेक करके देख लेता हूँ. So command prompt में here I am going to type ping 192.168.2.2 तो क्योंकि मैंने साले PC का एड्रेस दिया था 2.2 so you can see that this network can communicate with each other